of me explaining what to do in the next bank, I would do it assignment, a workflow analysis. So first you will walk into the bank, you'll ask for chai, you'll ask for access to report server, you'll ask for engagement letter signed, you'll just send it on email, you'll share the requirement list initially created, and you'll ask for HYR3. So what we'll do is HFIN RPT, that is H financial reports. Okay, you will have to do this. I just add more emphasis on it by using purple and a very funky looking this sign, and increase the font size to 16 so it will be more evident, gets more attention. HFIN RTP, you will find HRY3 priority sector wise loan balances. You will do the PNL and balance sheet, that is GL daily. This is again GL daily. This is, you have to obtain this from your BM product server. Okay, branch manager product server report. And there is SMA report on date. You will have to do this on a date, that is SMA advances report date, so last 4 quarters for a moving average analysis. Upgradation in SMA and downgradation in SMA, you have to test it separately from using the 4 monthly reports you generated. Upgradation is to be tested for transactions. You will just find out the areas. Valuation reports, so you can find out home valuation report, you can find out security expiration report, valuation expired reports. There could be a maturity report as well, and if you can, then you should find MIS valuation report, MIS wise valuation report, because this will give you valuation date, and this will be useful in finding NPAs. Okay, this is useful in finding NPAs and NPA with valuation expired. Okay, because what banks would do is a desktop valuation. Okay, so then go for the NPA reports. So NPA, every 3 years there is a valuation to be taken, else it will be considered unsecured and therefore increase the provisioning under the IRAC norms. So that is why the valuation report is of much importance. Then upgradation of NPA, this is the report. You should just find out the report and see whether the approval for has been taken at a higher authority by using something called an MRL. First you should put this in MRL because you are not sure whether that person's roll number is your authority in Finacle. So roll number should be higher than whatever is the person applying for approval, and whatever is the reason stated, you should verify the reason, whether stock statements have been obtained or the amount has been recovered. If it has been recovered, whether it has been posted correctly against principal and interest. Okay, then there are credit guarantee reports. You should obtain the list of opening claims, accepted claims, rejected and pending claims, number of claims, amount of claims, and reason for rejection. All of this is to be obtained, and you should also put this in MRL because you are not sure of it, and you can never be sure of it. Then calculate large advances from HYR3 report in Excel, that is the report you will be taking in the first place. And large advances is very easy to calculate, that is minimum total advance is 10 crores. Sanity check, you should always do it. Completeness, you have to test, and total of the balance sheet advances should match the HYR3 report. And then apply a pivot sector wise. The sector wise should not be less than 20%. 20% should not priority sector. I am so bad with it. Priority sector. Okay, 20% से ज़्यादा होना चाहिए. Then you should do an amount wise stratification and determine your sample, determine your NPA, determine your materiality based on loans on balance sheet date. You should also do this for a month. It should also be based on your analytical review for balance sheets and PL. And then what you'll do is find out new accounts opened and new sanctions made during the year report, and to test it for frequent renewals. So new accounts opened and new sanction report, what you can do is you can look up the values and test it. If it has been in the AFC3, that is your NPA report. If it is in AFC3 report, then it is an NPA. It's a case of quick mortality. New sanctions, you should check for whether the authority of sanctions is in line with the branch manager, and obtain the matrix of what all types of loans can he
give whether business, non-business, agriculture, non-agriculture type of facility that he can sanction on his own authority, and test for whether the sanctions have been made in line with it. Then obtain an interest rate wise report of loans from HFIN RTP. All of these reports can be generated from HFIN RTP, RPT, sorry. It's so common with RTPs. I'm saying RPT, HFIN RPT. That is the best thing. Okay, then and then for taking out these reports, you have to do HYR, HPR. HPR is print report. Okay, this is the way. And always do it Excel, never avoid the text file as possible, as maximum times as possible. Whenever it's giving you an option of generating Excel, do the Excel instead of the text file. Okay, and interest rate wise, the spread should be calculated along with number of accounts. If there are too many accounts and there is a very large spread, test the maximum and minimum for correct interest rate fed in the CBS from the file of sanction. If there are very less loans, you can just test check whether the spread is too much or not. So you can always use the pivot table and show value as sum count, and there is another thing called variance of the population. You should do variance population because variance sample would, because you are using the entire population of the interest rate file, so you should use interest rate variance of population and then find out whether the variance is too much or less. The top variance should be really checked because they might have some problems within them. Then you'll do the facility wise report, the cash balance report. Facility wise is loan, agriculture loans and non-agriculture loans. Agriculture loans may be helpful in understanding the subvention part, and non-agriculture is just for stratifying into different schemes. By the way, the interest wise loan gives out the scheme wise also, scheme wise account report. So what you can do is use interest rate plus X lookup of HYR3 sector wise. Okay, you should do this. So this will give you an idea about the total types of loans and everything, and then you can do the same with other files as well. Then you can obtain the cash balance report from MSTRP. This is the best report. ओके MSTRP इससे माइनर सब्सिडरी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, इससे आपका एक्सेस कैश, इससे आप कोई सा भी अकाउंट का 12 महीना 22 महीना कितने भी महीने का निकाल सकते हो. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. ये निकाल लो, ठीक है, बेस्ट है. देन CCODA बैलेंस, CCODA बैलेंस फाइल, ये भी आपका डेली GL वाले से आएगा. दिस इज HFIN RTP के अंदर GL वाली तरफ पे आता है. इसको ले लो 4 क्वार्टर के लिए. इनमें देखो स्टैगनेंट कौन कौन से हैं, वो आपके OD वो हो सकते हैं. ओवर क्या होने चाहिए, आउट ऑफ ऑर्डर होने चाहिए, नॉट आउट ऑफ ऑर्डर बट NPA. एंड DP रिपोर्ट ले लो. DP रिपोर्ट भी 4 महीने के लिए ले लो, वेदर एनीथिंग हैज़ बीन आउट ऑफ ऑर्डर और नॉट. DP अगर बहुत ज़्यादा चेंज होती भी दिख रही है या फिर कोई चेंज ही नहीं हो रही DP, मतलब उसका स्टॉक स्टेटमेंट रेगुलर नहीं आ रहा है या फिर कुछ फिशी है, उसको भी चेक कर सकते हो. एंड लोन बैलेंस ओवर ड्यू रिपोर्ट HLAOPI से आएगी. इसमें 75 ड्यू वाला टेस्ट करेंगे हम. ये भी हम 4 महीने के लिए ले लो, पिछले 4 महीने के लिए, इनफ फॉर दैट. रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स की रिपोर्ट लो, कन्फर्मेशन लोन से करेक्ट है कि नहीं, MRL में डालो. स्टॉक स्टेटमेंट ड्यू रिपोर्ट 4 क्वार्टर्स के लिए ले लो, जिससे पता चले कौन कौन से लोग समय पे नहीं जमा करा रहे हैं. एंड वैल्यूएशन मैच्योरिटी रिपोर्ट, एक्सपायरेशन ऑफ वैल्यूएशन वाली रिपोर्ट होनी चाहिए. न्यू बाय एक्सपायरिंग वैल्यूएशन, इमूवेबल. तो पहले तो हम वैल्यूएशन मैच्योरिटी रिपोर्ट में क्या करेंगे, हम एक्सपायर्ड वैल्यूएशन के लिए चेक करेंगे वेदर कोई वैल्यूएशन एक्सपायर्ड तो नहीं, और एक्सपायर्ड है उसको टेस्ट करेंगे कि क्या वो NPA तो नहीं हुआ है. और अगर NPA हो गया है तो क्या वो अनसिक्योर्ड के हिसाब से प्रोविज़न है कि नहीं. ठीक है, प्रोविज़न, ठीक है. विजन मैंने गलत लिखा है ना, हाँ. फिर न्यू बाय एक्सपायरी वैल्यूएशन, मतलब कि अभी रिसेंट में कौन से होने वाला है, रिसेंट एक्सपायरीज कौन से होने वाली है. मूवेबल का उतना सेंस नहीं बनता, बट मूवेबल की ज़्यादा फार रीचिंग नहीं होनी चाहिए. फार रीचिंग नहीं होना चाहिए. मतलब इमूवेबल है तो भाई आप 10 साल की वैल्यूएशन ले सकते हो. मूवेबल है तो आप 10 साल की तो नहीं ले सकते. वो है सरसाई चार्ज नॉट एंटर्ड वाली रिपोर्ट होती है, कोलेट्रल ज़ीरो रिपोर्ट होती है, क्रेडिट सैंक्शन एक्सपायर्ड वाली रिपोर्ट होती है, एक्सेप्शन रिपोर्ट होती है लास्ट 3 डेज़ की, वो ले सकते हो. ODA रिन्यू रिपोर्ट ये वाली आती है, ये भी आपकी HFIN RTP में या RPT में आएगी. HFIN RPT में, HFIN
RPT, इससे ही निकालेंगे। वेवर आती है इनकम लीकेज रिपोर्ट के अंदर, उसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। देन यू हैव योर MSTRP करोगे, कॉपी टेक्स्ट इनटू टेक्स्ट पैड, कॉपी इनटू नोट पैड, सेव करो फाइल को और पुट इट इनटू वन फोल्डर और कोड को रन करो। कोड क्या है, क्वेरी है, उसको रन कर लो। और ये फॉर डू दिस फॉर ओनली CCODA के लिए करो इसको, ठीक है। लोन्स के लिए अलग से फोल्डर और अलग से यूज़ करो। लोन्स के लिए क्या है, लोन्स के लिए आपको EMI और इसका रिकैलकुलेशन इस सबको देखना है। छोटी फाइलें होती हैं वो। CCODA यूजुअली बड़ी होनी चाहिए, जो छोटी हैं या फिर कम ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है, उनको ध्यान से देखो। छोटे फाइल्स को ज़्यादा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन चार्जेस और इंटरेस्ट रिकैलकुलेशन, ये सब देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट सस्पेंस की रिपोर्ट देखो कि NPA का मूवमेंट कैसा हो रहा है। अगर इंटरेस्ट सस्पेंस में अमाउंट्स मूव इन और आउट कर रही हैं तो उनको देखो करेक्टली हो रहा है कि नहीं। और MIS वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर ये मिल जाए ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इससे पता चलता है कि कौन से दिन वैल्यूएशन रिपोर्ट्स एंटर करी जा रही हैं। अगर एक ही दिन पे वन डे, मतलब आपको ये देखना होगा कि डेट वाइज नंबर ऑफ वैल्यूएशंस कितने एंटर करे जा रहे हैं। इससे पता चलेगा कि भाई रेगुलर वैल्यूएशन है या डेस्कटॉप वैल्यूएशन है। अगर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप वैल्यूएशन, तो देन आस्क फॉर रिपोर्ट। नहीं मिलती है तो क्वालिफाई रिमार्क, ठीक है। इतना तो हुआ ही है। इसके बाद कुछ हम चेक कर लेते हैं कि कुछ और चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर, जिससे क्या रहता है, उनको कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकल सकती है। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए किसी और के उससे, तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ। अब जैसे मैं बताता हूँ क्या क्या है। देखो, एजिंग रिपोर्ट ऑन पॉइंटिंग अकाउंट। पॉइंटिंग अकाउंट क्या होते हैं, पॉइंटिंग अकाउंट होते हैं कि आपके सेल्फ रिकनसाइलिंग अकाउंट जो होते हैं उनको पॉइंटिंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है रिपोर्ट, यू कैन जस्ट ट्राई इट। देखो, हाकलिंग जो है ना, HACCLINQ, इससे पता चलता है लेजर में इंक्वायरी क्या है। इससे बेहतर होता है हैकलिंग से बेहतर क्या होता है मैं बताता हूँ। HMACI, ACI क्या है, मास्टर अकाउंट से इंक्वायरी करना, इसमें सब पता चल जाता है, ठीक है। HCLL, इससे पता चलती है कोलेट्रल, ठीक है। HANTRPT, इससे पता चलता है इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज हुआ एक अकाउंट में। ये कुछ रिपोर्ट हो गई। एक्सेप्शन रिपोर्ट जो है मेरे को इतनी काम नहीं है बिकॉज आई डेंट नो हाउ टू डू इट, ठीक है। तो ऐसा सच मेरे को कुछ पता नहीं चला था इससे। फिर आती है आपकी ये रिपोर्ट्स, देखो HCLAI, ये जो है आपका, ये लेजर इंक्वायरी रिपोर्ट है। इससे मेरे को उतना कुछ खास काम नहीं आया था। शॉर्ट कैश रिपोर्ट, शॉर्ट नहीं है वो, शर ऑफ कैश है, तो उसको छोड़ दो, कोई काम की नहीं है। एवरेज कैश बैलेंस रिपोर्ट बेकार है, इसको यूज़ मत करो। मैंने बताया MSTRP, उससे करो। HCLAI, इसको कुछ नहीं, ये आप तो बैंक से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। HCLAI, इससे भी कुछ इतना नहीं है। हाकलिंग, इससे भी कुछ इतना नहीं है, ये भी बेकार है, ठीक है। HACSP, इससे क्या आता है, ड्यूरिंग अ पीरियड स्कीम वाइज, ये काम नहीं करती है। एच लैम्प जो है वो थोड़ा काम की है। एच लैम्प, इसको क्या करता है, ये मास्टर डेटा प्रिंट करता है, प्रिंट रिपोर्ट है ये। इससे बेटर क्या है, HMCI, ये आप CBS पे देख सकते हो। प्रिंट तब लोगे ना जब आपको कुछ डॉक्यूमेंट करना हो, बेकार है। बाकी इसके अंदर डिटेल निकलती उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। HLAODR, हाँ ये तब भी अच्छी है। HLAODR, इसको यूज़ करो। HLAODR, इससे पता चलता है ओवरड्यू अकाउंट्स कौन कौन से, उसका एक रिमाइंडर लेटर जनरेट करने वाली रहती है, बट आप उसको इंक्वायरी की तरह, रिपोर्ट की तरह करो, ठीक है। रीपेमेंट शेड्यूल यूज़लेस थी। रीपेमेंट हिस्ट्री यूज़लेस रही, मेरे तो काम नहीं आई, नहीं चलती है। ये वाला जो है, ये वाला रिन्यूअल ऑफ लिमिट इन सिस्टम, HACLHM, ये जो है ना, इसको थोड़ा सा ट्रांजेक्शन टेस्टिंग के साथ यूज़ करो। ट्रांजेक्शन टेस्टिंग ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट एंड DP कैलकुलेशन, क्या DP करेक्टली कैलकुलेट हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट टर्नओवर रिपोर्ट उतनी मेरे काम नहीं आई। इंटरेस्ट रेट टेबल रिपोर्ट उतनी काम नहीं आई। HLAROR, ठीक है, ये शायद जनरेट होती है कि नहीं, होती है शायद। HLAROR, ये शायद जनरेट नहीं होती है। स्टॉक स्टेटमेंट जनरेट नहीं हुई थी मेरी। इंश्योरेंस एक्सपायरी भी जनरेट नहीं हुई थी मेरी, ठीक है। इसमें सबसे मेन जो है वो कोलेटरल लुकअप है, बाकी बेकार है। लिंक मेंटेनेंस और ये आप लुकअप से चलोगे तो सारे निकल आती चीज़ें, तो बाकी सब बेकार है इसके अंदर। इसमें क्या मेन रहता है, इसमें लास्ट वैल्यूएशन डेट जरूर देखना है, कब वैल्यूएशन हुआ है,
इंश्योरेंस करेक्टली एंटर्ड है कि नहीं, किस तरीके का है, सी आई एफ आई डी, कोलेट्रल आई डी किस टाइप का है, फंक्शन इंक्वायर में ही चल रहा है हमको। एच एन पी ए आर पी टी नहीं चलती है, ठीक है। डेबिट सेविंग ये बेकार, मैंने यूज़ नहीं करी, ये भी यूज़ नहीं करी थी मैंने, ये भी यूज़ नहीं करी थी मैंने, ठीक है। अदर क्या है, माइनर सब्सिडरी, ये भी यूज़ नहीं करी थी, ये भी यूज़ नहीं करी थी। इससे बेटर क्या है हमारी, इससे बेटर हमको यूज़ करनी है एच एम एस टी आर पी, ठीक है। गोल्ड बुलियन इसको भी यूज़ नहीं करा था हमने, तो कोई मतलब नहीं है। ये जो है ये तब भी काम किया, आपको इससे पता चलता है बैंक जो अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज हो रहा है, ओवर इट्स लाइफ टाइम भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट ये प्रिंट रिपोर्ट होती है, तो इसको एच पी आर से जाके निकालना पड़ेगा। एच एफ आर टी मेरे को नहीं मालूम, मैनुअल अल्टरेशन इफ ऑथराइजेशन रिवर्सल इफ एनी, इसका इतना कुछ काम नहीं आया था। टी डी एस वाली नहीं खुली थी रिपोर्ट मेरी तो, ठीक है। क्विक मोर्टेलिटी एच एसिड, हाँ ये एच एसिड जो है ना, एच एसिड, इसको आपको क्या करना है, अपने जो ऐसे में है या फिर आपको लग रहा है थोड़े से इंडिकेटिव लग रहे हैं, इंडिकेटिव लग रहे हैं अकाउंट, इंडिकेटिव ऑफ एनपीए लग रहे हैं, उनको चेक करना है, कहीं ये साल में पहले तो एनपीए नहीं हुए हैं, इनको चेक करना है एच एसिड से जाके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हाली जो है, हाली एच एल ए आई, हाली जो है वो चेक करेंगे हम डी पी वाले, डिपॉजिट के अगेंस्ट वाले सी सीज़ और सी सी स्लैश लोन्स के लिए, ठीक है, कि लीन मार्क्ड है कि नहीं। इफ़ लीन इज़ नॉट मार्क या फिर सिक्योरिटी प्रॉपरली मार्क नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एक्सेप्शन रिपोर्ट ये कोई काम नहीं आई थी, ये भी कोई काम नहीं आई थी। एच एस सी आई ये भी काम नहीं आई थी। ये जो है अकाउंट मेंटेनेंस हिस्ट्री बता दी है, एच ए सी एल एच एम ये काम आई थी। देन इंस्टॉलमेंट डेट, इंटरेस्ट डेट, इसको छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं। इतनी रिपोर्ट तो मेरे काम आई थी। इसके बाद कुछ और है तो लेट मी टॉक अबाउट इट। डाउनलोड्स में मेरे पास होगी कोई रिपोर्ट क्या, वॉल्यूम 10 ये वाली, ठीक है। इसमें गो थ्रू करते हैं, कोई मेरे को मिल गई हो तो मैं बता देता हूँ। नहीं ये तो कोई और रिपोर्ट है। फिनेकल मैनुअल, फिनेकल 10 कमांड्स, ओके। कमांड्स में देखते हैं, आ जाओ। ये किसी काम की नहीं, काम की नहीं, काम की नहीं। इंटरेस्ट रन नहीं 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 नहीं, ठीक है। पूल प्रोसेसिंग रिपोर्ट ये भी कुछ काम नहीं आई थी, ठीक है। जितने रिपोर्ट वाले हैं अपन को तो रिपोर्ट वाली ही चाहिए, रिपोर्ट, सिर्फ रिपोर्ट पे ध्यान दो, बाकी सब तो बेकार है। अच्छा ये वैसा नहीं है ना, ये नहीं तो रिपोर्ट वाला मैं बता देता। और कौन सी रिपोर्ट है भाई, स्विफ्ट बिल, अकाउंट बैलेंस डिटेल, करंट, ये लिस्ट जो है ये इतनी काम तो मेरे भी नहीं आई थी, मैंने तो इसमें से बहुत सारी यूज़ भी नहीं करी है, ठीक है। इसको छोड़ा जाए। एक मेरे पास थी फिनेकल टॉप 10 कमांड फ्रॉम बैंक मैनुअल प्रेस, और शायद वो है नहीं अभी बार डाउनलोडेड, बट और कोई रिपोर्ट होती तो मैं बता देता, बट दिस इज़ व्हाट यू शुड डू, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या करना है अपन को, बैंक ऑडिट के समय थोड़ा सा टेस्ट चेकिंग उनके बिहेवियर पे ही पता चल जाएगा कि वो कैसी बातें करते हैं, उससे पता चल जाता है। चाय कम पियो, खाना ज़्यादा मत खाओ, दैट्स ऑल फॉर द डे।